सोनभद्र में सबसे बेस्ट स्कूल है। माय नेम इज रूबी अंसारी। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ स्काईलैंड स्कूल में और यहाँ पर बच्चों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं विज्ञान से टच है और उनकी जो प्रोडक्ट हैं उनको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे बातचीत भी करूंगा उनके प्रोडक्ट के बारे में। सभी बच्चों ने अपने टेबल पर अपने अपने प्रोडक्ट को सजा रखा है। मैं उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी लूंगा। क्या नाम है? अनिकेत शर्मा। आप आविष्कार पांडे। क्या प्रोडक्ट्स में आपने दिखाया है? किंग ऑफ फाइव, हाउ टू वर्क ऑफ फाइव। बताएं, इसके बारे में बताओ यार। Outer side of eyes, when we cut the outer side of eyes, it look like this. जी, Imagine you are seeing this alphabet W through your eyes with the help of light, and this light rays first pass through the cornea. As the cornea is curved surface, the light rays with band are reflected when the light rays pass through the cornea, and these rays then passes through the lens. As the light rays passes through the lens, the lights bend again for the second time, and finally arrives at the retina. कैसे कार्य करता है? किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को हम अपने आँख से देखते हैं तो ये हमारे रेटिना में उल्टा बनता है और जब हमारे ब्रेन से हमारे को जब सिग्नल मिलता है तो रेटिना से वो सही इमेज हमारे ब्रेन में बनता है। धन्यवाद। Hello sir, good. My name is Ruby Ansari. Today I am going to explain about a very important system in our body, which is excretory system. While performing many metabolism activity, our body generates harmful products and it causes some disease also. वर्क Let कैसे me tell करता you how it works. When our blood contains the impurities, it will comes into kidney and then blood will get filtered and the impurities will convert into urine. It will pass through the ureter and it will collect in urinary bladder. When urinary bladder full, it will expelled out by with the help of urethra. This is the work of excretory system. Each kidney has millions of nephron which removes excess water and waste products such as urea. This is the work of. थैंक यू। अपना नाम बताओ। My name is Arpit Pandey and this is respiratory system and it works. जी, थैंक यू। Morning, sir. My name is Maya. This is alimentary system. It is passes through the esophagus, then it goes to the stomach. In stomach, there are lots of enzymes and acids are secreted, which break down the food. Then it goes into the small intestine. In the small intestine, approx 90% of absorption will occurs. Then it goes into the large intestine. Large intestine reabsorb the excess water or absorb amount of water which is present in the food. Then the toxic substances which will be collected into the rectum and then it's excrete out through the anus. जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ Sir, ठीक है। this is the powerhouse. The meaning of powerhouse is electricity generating station. In the literal sense, the powerhouse is a station or plant that generates electricity. Powerhouse is a far more commonly used in the dictionary and especially of context in the sports and business. Thank you. वर्क कैसे करता है? Sir, press this switch and produce the electricity and electricity or produce this working model of powerhouse. जी बताओ। Good morning, sir. I am Karthik Yadav from class 6. Today I am going to explain what is tornado. Tornado is a part of a wind energy. This is a sky to this is a reverse sky to the ground. This is a column of represent winds. Thank you. Have a nice day. थैंक यू। जी, दिखाइए कार्य कैसे करता है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। इसको जरा जूम कर दीजिएगा। This is a windmill. The tall building of the structure with the spleen that turn in the wind. थैंक यू। कार्य करता है, बैटरी दिखाओ कैसे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। My name is Fiza Parveen. बना लिए थे ना? कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताओ। गुड मॉर्निंग। है नहीं लगता। I am Amrita from class 5. आप? I am Preeti from class 5. I am Ayushi from class 5. Today's स्कूल में topic यहाँ of पर यहाँ के dancing जो robot. प्रिंसिपल साहब है Robot उनसे भी is a बातचीत करूंगा, machine. It's जानूंगा like a बच्चों के computer. बौद्धिक It विकास के लिए performs और उनका tasks of कैसे smart उत्थान हो
इसके बारे में भी जानकारी लेता हूँ। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? मेरा स्कूल है जी पूरे भद्र में सबसे बेस्ट स्कूल है, जी क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी देती हूँ, जी जिससे वो हम मिल करके भारत के एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें। जी और जैसा मैं आज के दिन के बारे में आपको बताना चाहूंगी, टुडे इज 28 फरवरी और आज के दिन नेशनल साइंस डे होता है। जी इसीलिए हर साल मैं अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का सेलिब्रेशन करती हूँ, जी जिससे कि बच्चे खुद को एक्सप्लोर भी कर सकें, नए नए प्रोजेक्ट बना करके अपने माइंड का भी ग्रोथ कर सकें, एज वेल एज वो ये भी याद रख सकें कि 28 फरवरी को साइंस एग्जीबिशन डे होता है, नेशनल साइंस डे होता है। जी इसीलिए मैं आज के दिन इस चीज के लिए चुनती हूँ कि आज के दिन ही साइंस एग्जीबिशन मनाया जाता है मेरे जी। स्कूल में। देखिए, अन्य स्कूलों की अपेक्षा कुछ अलग हट करके जब स्कूल में होता, क्या ऐसी चीज है कि जो अलग दर्शाती है आपके स्कूल? ऐसी बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप देखे होंगे ही, जी मेरे यहाँ के हर एक बच्चा खुद में इतना ज्यादा प्रतिभा रखता है और बच्चों के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि टीचर क्लासरूम में सिर्फ उन्हें रट्टू तोता नहीं बना रहे होते हैं, जी वो उन्हें कैसे लर्निंग बाय डूइंग किया जाता है यहाँ पर, मतलब करके सिखाया जाता है। जी चाहे आप एलकेजी के बच्चे को देख लीजिए, चाहे नर्सरी के बच्चे को, चाहे आप क्लास 8 तक जाइए, 7, 6 किसी भी क्लास में आप जाएंगे, जी तो हमारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसको वो करके सीखते हैं। यही चीज है जो हमारे स्कूल को सबसे अलग बनाती है। जी। मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चों को प्रतिभा उभारा जाता है वो इसी स्कूल में होता है। जी बाकी अन्य स्कूलों में तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, जी बच्चे अपने से करे ना करे बस आते हैं लेक्चर देके चले जाते हैं। बस यहाँ पे है हर एक एक्टिविटीज को बच्चों को करके और दिखा के ही सिखाया जाता है, ताकि बच्चे से भविष्य में ना भूल सके। जी। सर, आप? जैसा कि आप देखें, ये हमारे छोटे बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं। सारी चीज़ें आप यूकेजी के बच्चे हमारे को यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे थे। सोलर सिस्टम में क्लास 2 से पढ़ाया जाता है। तो वो चीज़ों को पहले ही बताया जाता है और धीरे-धीरे फिर जैसे अभी सोलर सिस्टम पढ़ाया गया, फिर आगे जाकर के उसकी नेक्स्ट स्टेप करके उसके बारे में और मरकरी क्या, वीनस क्या है, सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में से पढ़ाई जाती हैं इसमें। जी। देखिए, बच्चों का मानसिक विकास हो और तो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करें अपने इस विज्ञान के क्षेत्र में, बच्चों में ऐसे संस्कार भी डालना चाहिए। मैडम जी, क्या कहना चाहिए? जी, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे बच्चों को सिर्फ़ हम किताबी नॉलेज नहीं देते हैं, उसके साथ-साथ वो चीज़ें प्रैक्टिकली वो करके देखें। इसी थीम को सोचते हुए आज साइंस एग्ज़िबिशन भी किया गया है कि जो चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी, वो प्रैक्टिकली करके देखें, तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। बचपन से ही एलकेजी, पीजी से ही हमारे यहाँ लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है। जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, उसको सीखें, करके देखें, तब वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी और वो दिमाग में एक बार अगर फिक्स हो गई, वो लाइफ़ टाइम उनके लिए रहेंगी। जी इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे कि बच्चे हर चीज़ को अपने से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी। देखिए, बच्चों में किताबी ज्ञान और उनके जो उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए ऐसे ही संस्कार बच्चों में डालना चाहिए। दिखाता रहूंगा मैं संजय श्रीवास्तव। नमस्कार।